ڈاکوؤں کی فائرنگ میں پولیس اہلکار جاں بحق ہو گیا۔ پولیس اہلکار ڈیوٹی کے دوران گشت پر تھا کہ ڈاکوؤں کی جانب سے فائرنگ کی گئی اور ڈاکوؤں کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا۔ کوٹری خدا کی بستی پولیس پوسٹ پر مقرر 45 سالہ غلام قادر کھوسو ولد احمد خان کھوسو موٹر سائیکل پر جا رہا تھا۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے اہلکار جاں بحق ہو گیا۔ ڈاکو موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ جاں بحق اہلکار کی نعش ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کوٹری منتقل کر دی گئی۔ اطلاع ملنے پر پولیس کے بھاری نفری نے علاقے کا محاصرہ کر لیا ہے۔ منڈی بہاؤدین میں ایس ایچ او تھانہ سٹی نے محلہ شفقت آباد پر چھاپہ مار کر 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ منڈی بہاؤدین ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر انور سعید کنگرا کے حکم پر ایس ایچ او تھانہ سٹی پولیس نے محلہ شفقت آباد پر چھاپہ مار کر شہناز سیالکوٹ اور عرف پٹھانی کی بیٹی صبا پٹھانی کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ صبا اپنی سربراہی میں سرعام قہوہ خانہ چلا رہی تھی، جبکہ اہل محلہ کی شکایات پر پولیس نے چھاپہ مار کر گرفتار کر لیا اور ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا ہے۔ چنیوٹ میں سب سے طویل مترجم رنگین قرآن پاک کی نمائش کا افتتاح کر دیا گیا ہے، جبکہ ایک روزہ نمائش گورنمنٹ اسلامیہ پوسٹ گریجویٹ کالج چنیوٹ میں لگائی گئی۔ چنیوٹ اسلامیہ کالج میں طویل رنگین قرآن پاک ترجمے کے ساتھ معروف خطاط امتیاز شاہ نورانی نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ قرآن پاک 40 فٹ لمبا، 8.5 فٹ چوڑا اور 31 صفحات پر مشتمل ہے۔ قرآن پاک کی زیارت طلباء و طالبات اور سول سوسائٹی نے کی۔ امتیاز حیدر نے اپنے ہاتھ سے طویل قرآن مجید تحریر کر کے ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ ہاتھ سے لکھے قرآن پاک کو بچے شہری بڑے شوق اور عقیدت سے اسے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سچی، مقدس اور حکمت سے بھری کتاب ہے۔ قرآن پاک کو ہم اپنی زندگی میں لائیں گے تو نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی فلاح پائیں گے۔ ہارون آباد میں کم عمر اور ڈرائیونگ سے ناواقف بچے موٹر سائیکل اور چنچی رکشے چلا کر موت کا کھیل کھیلنے میں مصروف ہیں، جبکہ ٹریفک پولیس خاموش تماشائی بن گئی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے ارشد علی سے۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ ہارون آباد شہر اور گردوں میں ٹریفک پولیس اہلکاروں کی کارکردگی انتہائی افسوسناک ہے۔ ٹریفک پولیس اہلکار صرف دیہڑی لگاؤ پروگرام کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ آئے روز کم عمر بچوں اور بنا لائسنس ڈرائیونگ کرنے والے حضرات کے باعث حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹریفک پولیس اہلکاروں کی موجودگی میں جگہ جگہ رکشہ سٹینڈز کی بھرمار ہے۔ شہر کی مختلف شاہراہوں پر ٹریفک کا جام رہنا معمول بن چکا ہے اور اوورلوڈ گاڑیوں کو روکنے کے بجائے انہیں دیہڑی لگا کر جانے دیا جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، آئیے مزید ان سے جانتے ہیں ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ جی ہارون آباد میں ٹریفک کا نظام انتہائی ناقص ہے اور بھامل نگر روڈ پہ جو کہ ٹریفک اہلکار دیہڑی بنانے کے چکروں میں سارا دن کھڑے رہتے ہیں اور یہاں پہ رکشہ ڈرائیور جو بچے ہیں تقریباً 95% ان کے پاس لائسنس نہیں ہے، جو کہ حادثات کا سبب بنتے ہیں، اور جو بڑے لوگ ہیں ان کے پاس بھی لائسنس نہیں ہے۔ لہٰذا ہماری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے ان کو یہ رکشے فی الفور بند کیے جائیں اور انہیں کیفیت کردار تک پہنچایا جائے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہارون آباد میں ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کو صرف اور صرف مال بناؤ پالیسی سے دلچسپی ہے، جبکہ ڈی ایس پی ٹریفک پولیس ندیم بٹ سے ہارون آباد کی عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ ہارون آباد میں فرض شناس ٹریفک پولیس اہلکار تعینات کیے جائیں۔ جی خبر کیرول پکا سے، جہاں پر کسانوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں، یوریا کھاد کی کمی اور بلیک میں فروخت سے گندم کی فی ایکڑ پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ مزید دیکھتے ہیں حسن خان رن کی یہ رپورٹ۔ کیرول پکا میں کسانوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں، یوریا کھاد کی کمی اور بلیک میں فروخت سے گندم کی فی ایکڑ پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ دکاندار یوریا کھاد سرکاری ریٹ 2200 کی بجائے 2700 روپے میں بلیک پر فروخت کر رہے ہیں۔ یوریا کھاد نایاب ہونے کی وجہ سے کسان شدید پریشان ہیں۔ کسان کہتے ہیں کہ یوریا کھاد سے مارکیٹ چھاٹے ساکو جرنا مہنگے ریٹ نال لیندے پین، حکومت ریٹ 2200-2300 ہے، اے ساکو 2800-2700 کی دکھنن ساڈیاں کਣکاں جڑے فصلاں یوریا کھاد دیا پین جن دی وجہ کنوں ختم تھی ونجن۔ برائے مہربانی جڑا ایکو ریٹ دے گرنا ہو۔ ہاں سائیں کھاد ساکو ملدی نہیں، کنک سارے پانی کرے دے پین، کھاد لوڑ ساکو ڈاٹھی کھاد ساکو ملدی نہیں، مہنگیاں بہو مہنگیاں کھاد لیندے اساں کیا کروں؟
साकू हुकूमत खाद हिड़वाए कणक को असां पाणी लऊं खाद हलियूं फसल सारी बर्बाद थी वेंदी पिछली फसल उवें पई है अगली फसल असां वहा ते हुण पिस्तां ते बैठे ना ही वहावणी ज्यादा या तो साकू खाद हलियो मेहरबानी करो साले उते हुकूमत ते कोल फुल अख्तियार आहिनि खाद हाले को आखो साकू खाद ॾेवन जे खाद न ॾियो तो सारी फसल बर्बाद थी गई। किसानों ने असिस्टेंट कमिश्नर कैरोल पका, डिप्टी कमिश्नर लोधरा और महकमा ज़राअत के आला अफसरान से मुतालबा किया है कि खुदारा जो ब्लैक में खाद फरोख्त कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाए और सस्ते दामों जो है खाद किसानों को फराहम की जाए ताकि किसान जो है अपनी गंदम की फसल जो है तैयार कर सकें। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खरिंद, मेट्रो वन न्यूज, कैरोल पका। आरिफवाला शहर में ट्रैफिक के मसाइल को देखते हुए सब्जी और फ्रूट मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल करने पर काम तेजी से जारी है। इसी पर आरिफवाला से यासिर अली कब्बो की रिपोर्ट देखते हैं। आरिफवाला शहर में ट्रैफिक के मसाइल को हल करने का बेहतरीन तोड़ निकल आया। सब्जी मंडी को शहर के वस्त से खत्म करके तरिखनी रोड पर नई मंडी कायम करने का काम शुरू कर दिया गया। 14 एकड़ रकबे पर मुहित सब्जी और फ्रूट मंडी का तामीराती काम बड़ी तेजी के साथ जारी है। सब्जी मंडी के आड़तियों का कहना है कि शहर से बाहर मंडी की मुंतकिली वक्त की अहम जरूरत बन चुकी है। मौजूदा सब्जी मंडी इंतहाई शहर के बिल्कुल सेंटर में और वहाँ पे ट्रैफिक के बहुत ज्यादा मसाइल हैं। इन मसाइल को हल करने के लिए हमने ये मंडी खुली जगह पे 14 एकड़ पे मुंतकिल की है, बाईपास तरीखनी रोड पे। आरिफवाला मंडी को बाईपास पर बनाकर इंशाल्लाह अवाम का दरीना मुतालबा पूरा करेंगे और इसी माह में अंदर इंशाल्लाह हम इस मंडी को फाल करेंगे जिसमें काम जोरों शोर से जारी है। सब्जी और फ्रूट मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल करने का फैसला बिलाशुबा काबिल तहसीन इक़दाम है, जिससे न सिर्फ आड़तियों और किसानों की मुश्किलात में कमी वाक़या होगी बल्कि शहर में ट्रैफिक के मसाइल भी यकीनी हल होंगे। कैमरा टीम के साथ यासिर अली कम्बो, मेट्रो वन न्यूज, आरिफवाला। कश्मीर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही कश्मीर के शहरियों ने खुद को सर्दी से बचाने के लिए दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के किनारे कायम फ्राई मछली के स्टॉल्स का रुख कर लिया है। मजीद देखते हैं कश्मीर से अपने नुमाइंदे नादिर अली गोलाची की इस रिपोर्ट में। मौसम सरमा का आगाज होते ही कश्मीर शहर में ठंडी हवाओं ने रुख कर लिया है। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। कश्मीर के शहरियों ने सर्दी से बचने के लिए दरिया सिंध गुड्डू बिराज की ताज़ा तरीन फ्राई मछली खाकर लुत्फ अंदोज होने के लिए दरिया सिंध गुड्डू बिराज के मकाम पर कायम मछली के स्टॉल्स का रुख कर लिया है। शहरियों का कहना है ठंडा मौसम हो और फ्राई मछली ना हो तो सर्दी का मजा अधूरा रह जाता है। यहाँ कंदकोट से है, पास में ही है कश्मीर से, तो मछली माशाल्लाह बहुत अच्छी है। हम एंजॉय करने आते हैं यहाँ पर। सर्दी के लिहाज से मछली यहाँ पर फ्राई बहुत अच्छी मिल जाती है। सिंधु दरिया जो कि हमारे पास में ही है, वहाँ से ताज़ी मछली जैसे निकलती है तो यहाँ पर दस्तयाब है। हम आते हैं बड़ी दोस्तों के साथ चक्कर शक्कर लगाते हैं। ये दरिया सिंध की मछली है, हम मच्छी खाने आए हैं। यहाँ पे मच्छी अच्छी मिलती है इसीलिए आते हैं। जो है डंबरा मच्छी है वो ताज़ा तरीन यहाँ पे पकती है और जो हम शौक से खाने आते हैं। हम बहुत दूर से देर खाने आते हैं और वो भी जो लोग यहाँ पे मछली खाते हैं उसको मज़ा बहुत आता है। बहुत फ्रेश मछली है। शहरी कहते हैं एक तरफ से तो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो और दूसरी जानिब दरिया सिंध गुड्डू बिराज की मछली ना खाएं तो ये तो नामुमकिन है। दोस्तों के साथ गैदरिंग भी बन जाती है और सर्दी से भी महफूज रहते हैं। कैमरा टीम के साथ नादिर अली कोलाची, मेट्रो वन न्यूज, कश्मीर। यूं तो शहर हैदराबाद की कई मशहूर सौगातें हैं, मगर मौसम सरमा में तैयार की जाने वाली मशहूर सौगात गचक अलग ही खासियत की हामिल है। गचक कैसे तैयार की जाती है और इसमें क्या लवाजमात शामिल होते हैं, हैदराबाद से बता रहे हैं शाजिब शेख अपनी इस रिपोर्ट में। मौसम सरमा में खुसूसी तौर पर तिल, शक्कर और ग्लूकोज से तैयार की जाने वाली शहर हैदराबाद की मशहूर सौगात गजक का जायके में कोई सानी नहीं। मजे में मुनफरिद होने के साथ साथ गजक सर्दियों में ताकत और चुस्ती भी फराहम करती है। विटामिन से भरपूर है, खाने में फायदेमंद है, गर्म होती है, बड़ा शौक से खाते हैं आदमी। बाहर जाती है, बाहर मुल्कों में भी जाती है। छोटे बड़े सब पसंद करते हैं इन चीज़ों को। अच्छी चीज़ है, सेहतमंद फायदेमंद होती है। गजक बनाने के लिए सबसे पहले चीनी और ग्लूकोज को घोलकर चाशनी बनाई जाती है। फिर चाशनी में तिल मिक्स करके पेड़े बनाए जाते हैं और पेड़ों को लकड़ी के हथौड़ों से कूटने के बाद ये मुनफरिद सौगात गजक तैयार होती है। इसके खाने से जो है ना चुस्ती, जिस्म में फुर्ती पैदा होती है और ये जो तिल है ना ये बहुत ताकतवर है। लोग इसको बहुत यूज करते हैं, इसको जो है ना इसको खाना चाहिए। गजक हैदराबाद से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों ही नहीं बल्कि कई मुल्कों में भी सप्लाई की जाती है। सर्दियों में हैदराबाद की सौगात गजक न सिर्फ हैदराबाद बल्कि मुल्क के दीगर शहरों में भी बहुत पसंद की जाती है।
कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करेंगे अहमदपुर सियाल से, जहां पर SHO थाना अहमदपुर सियाल महर नवाज खान नूल ने हमरा टीम ने कार्रवाई करते हुए अगवा शुदा 3 साला बच्ची को बाजियाब करवा कर वालिदा के हवाले कर दिया है, जबकि अहमदपुर सियाल SHO थाना अहमदपुर सियाल महर नवाज खान नूल हमरा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रमजान नवीद हाशिम खान ने कार्रवाई करते हुए 20 दिन से अगवा शुदा 3 साला बच्ची को बाजियाब करवा कर वालिदा के हवाले कर दिया, जिस पर SHO थाना अहमदपुर सियाल महर नवाज खान नूल की कार्रवाई को सराहते हुए सियासी समाजी हलकों ने खैर मकदम किया और बच्ची की वालिदा और दीगर अजीज़ व क़ारिब ने SHO का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश किया। वकला बरादरी और असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल इरफान मार्चन के दरमियान गुज़िश्ता महीने होने वाला झगड़ा आखिरकार वकला और असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल इरफान मार्चन की तरफ से सुलह में तब्दील हो गया, जिसमें 10 नामजद वकला और 10 नामालूम वकला पर FIR दर्ज थी। मजीद जानते हैं आरिफ रजा मट्टू की इस रिपोर्ट में। ऑफिस मीटिंग हॉल में वकला बरादरी और असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल इरफान मार्टन के दरमियान गुज़श्ता महीने होने वाला झगड़ा आखिरकार वकला की तरफ से और असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल इरफान मार्टन की तरफ से खुशगवार माहौल में तब्दील हो गया। सुलह की तरफ बढ़ाया हुआ एक अहसन कदम दोनों फरीकैन के लिए खुशगवार माहौल पैदा कर गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह, अरशद बदर, DPO राना शोएब, MPA मखदूमा सईदा सोनिया, अली रजा शाह और मशहूर सियासी और समाजी शख्सियात ने बहुत कोशिश करके इस सुलह के माहौल को पाए तकमील तक पहुँचा दिया, और जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल इरफान मार्टन ने इस सुलह के लिए कदम बढ़ाकर मोहब्बत का पैगाम दिया है। वहीं पे वकला बरादरी ने, जो कि पाकिस्तान का पढ़ा लिखा हुआ एक तबका है, उन्होंने अपना पढ़े लिखे हुए तबके को साबित कर दिया और यकीन दहानी करवाई कि तहसील पीर महल को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल इरफान मार्टन के साथ खड़े हैं। कैमरामैन नवीद हुसैन के साथ आरिफ रजा मट्टू, पीर महल। आजकल स्कूलों में खेलों की सरगर्मियां जारी हैं। ये खेल बच्चों को पुरजोश रखते हैं। इसी सिलसिले में निजी स्कूल में स्पोर्ट्स वीक का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं मेलसी से हमारे नुमाइंदे मियां शफी। बिल्कुल, शबीर ऑक्सफोर्ड स्कूल मेलसी में सालाना स्पोर्ट्स वीक का इनेकाद किया गया। 4 रोज तक जारी रहने वाले स्पोर्ट्स वीक का आज आखिरी दिन है। स्कूल के बच्चों का जोश और जज्बा भी खासा दीदनी है, क्योंकि गुज़श्ता 3 दिनों तक बच्चों ने जीत के जज्बे से सरशार होकर मुख्तलिफ खेलों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। और आज इख्तितामी दिन के मौके पर खेलों में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने वाले तलबा तालबात में इनामात की तकसीम किए गए। मेरे साथ इस वक्त स्कूल के डायरेक्टर मौजूद हैं। मजीद इस हवाले से उनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा। ये हर साल की तरह इस साल भी हमारे इदारे में सालाना स्पोर्ट्स वीक का इनेकाद किया गया है, जिसमें बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म की गेम जैसे कि क्रिकेट, म्यूजिकल चेयर, 3 लेग रेस, मेहंदी कंपटीशन, ईटिंग कंपटीशन और मुख्तलिफ गेम्स में बच्चों ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। स्पोर्ट्स वीक का मकसद बच्चों में तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करना है, इसलिए निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ इंतहाई अहम ज़रूरी हैं। जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी और इनका यही कहना है कि स्पोर्ट्स वीक का मकसद बच्चों के अंदर छुपे टैलेंट को जाहिर करना है और जदीद तालीम के साथ साथ अपने रवायती खेलों को भी फरोग देना है। जी, खानेवाल शहर को खूबसूरत बनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अकमल चौधरी का तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मजीद जानते इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल खानेवाल शहर को खूबसूरत बनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल का नजायत अफजात के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का सिलसिला जारी है। तो इसी पे बात कर ले। असिस्टेंट कमिश्नर साहब रहेगा नजायत तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करे, क्या कहना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, आपका खानेवाल शहर इंतहाई वसी और खुली सड़कों वाला शहर है। तो ये जितने दुकानदार हैं, इन्होंने इंक्रोचमेंट्स की हुई, बिल्कुल बाज़ार को तंग कर दिया था। तो आज से ये हमारी इंक्रोचमेंट की मुहिम अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। ये अकबर बाज़ार से हमने स्टार्ट किया है। अभी देख लें ये कितना वाइड रोड है, तो कोशिश करेंगे यहाँ बंदों की ड्यूटी भी लगाएं हम
जो मुसलसल इसकी मॉनिटरिंग रखें। ये इंक्रोचमेंट जो है ये किसी को बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि वो अपनी दुकान से बाहर लंबे लंबे थड़े लगा लें। मेरी अपील होगी तमाम ताजरान से कि इंतज़ामिया के साथ तावन करें और वरना सख्त कानूनी कार्रवाई जो अमल में लाई जाएगी। सर ये तय है कि आप जो वार्निंग देके चले जाते हैं लोग दोबारा उसी जगह पे आए थे क्या? जी मैंने उसी सिलसिले में आपको पहले बताया ना कि यहाँ पे अब हम मॉनिटरिंग टीम्स लगा रहे हैं जो मुसलसल इंक्रोचमेंट का अमला जो वो यहाँ पे गश्त भी करेगा और जब कभी कोई ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह इसी तरह हम डेली बुनियादों पे भी करेंगे इसको। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर का यही कहना था कि कईयों को वार्निंग भी दी जा रही है और इनको कहा जा रहा है। चोबोटेक सिंह की तहसील कमालिया की क्रिश्चियन कॉलोनी में वाक़या सिंधु हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें सीनियर सहाफ़ियों ने शिरकत की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक़लियती काउंसलर मसीही रहनुमा अशरफ जान सिंधु ने दस्तावेजी सबूतों के साथ मीडिया को बताया कि गुज़िश्ता 3 सालों से दर्जनों मुस्लिम सैनिटरी वर्कर्स घर बैठकर तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। उनकी पुष्ट पनाही सैनिटेशन ब्रांच म्यूनसिपल कमेटी कमालिया का ज़ीशान नामी सैनिटरी इंस्पेक्टर दीगर एहलकार कर रहे हैं। 2 साल कबल सूबाई हुकूमत की ग्रांट से 41 लाख रुपए मालियत के ऑटो रिक्शे कमालिया शहर की तंग गलियों से कूड़ा करकट उठाने के लिए खरीदे गए थे। इन ऑटोज रिक्शाओं को काम पर लगाने के बजाय कमालिया शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों में खुले आसमान के नीचे खराब होने के लिए खड़ा कर दिया है। इन ऑटो रिक्शाओं की पेट्रोल और मरम्मत के जाली बिल बनाकर हर माह लाखों रुपए सरकारी खजाने से निकाल कर हड़प किए जा रहे हैं। अक़लियती मसीह रहनुमा अशरफ जान सिंधु ने मीडिया को मजीद बताया कि उसने अपने इल्ज़ामात पर मबनी एक तहरीरी दरख्वास्त DC चोबोटेक सिंह मोहम्मद अरशद भदर को दी है, जिन्होंने AC कमालिया से 2 हफ्तों के अंदर अंदर जवाब तलब कर लिया है। तहसील चौक सरवर शहीद में गरीब आदमी सर्दी से बचने के लिए गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडे बाजार का रुख करते हैं, मगर इस साल बढ़ती महंगाई की वजह से लंडा बाजार की खरीदारी से भी महरूम हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे रजा उल्लाह खान से। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील सरवर शहीद में। महंगाई की बात की जाए तो महंगाई उरूज पे है। सर्दी से बचने के लिए लोग लंडा बाज़ार का रुख करते हैं ताकि अपने जिस्म को सर्दी से बचाने के लिए ढांप सकें, मगर पिछले साल की निस्बत इस साल महंगाई ज़्यादा होने की वजह से जो है ना लंडा बाज़ार में भी लोगों की क़ुव्वत ख़रीद न होने के बराबर है। वो लोग आते तो हैं मगर कपड़ा ख़रीद नहीं सकते, जर्सी या गर्म मनसूबात ख़रीदने से कासर है। मेरे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं, आइए हम दुकानदार से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। जी सर, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग आते हैं, उनका क्या रवैया होता है, क्या वो आपसे ख़रीदारी करते हैं या नहीं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर इस साल महंगाई बड़ी है, गवर्नमेंट का तरफ ही है अपील है ना, जो कुछ सस्ताई करे ना, बिल्कुल गिराक नहीं आंदा ना, जो कोई आ जावे तो वो बोलता है ये महंगाई है ना, बिल्कुल कोई भी चीज़ भी खरीदना ज़रूरत नहीं पड़ता है ना, वो वापस खाली जाता है ना। तो हमारे ये मजबूरी, हम इसलिए ये लंडा बाज़ार लगाए ऐसे ना, दुकानदार के पास तो जाना नहीं, इधर आता है उसने वो बोलता है यहाँ पे सस्ता होएगा ना, इधर भी महंगाई है ना, पीछे गवर्नमेंट का तरफ महंगाई होता है ना, तो इधर हम भी खुद महंगा देगा ना, इससे अलावा तो हम नहीं दे सकता है ना। जी बिल्कुल, आपने दुकानदार की बात की, उनका भी यही कहना था महंगाई की वजह से जो है ना आवाम तो ख़रीदारी के लिए आते हैं मगर इतनी महंगाई में वो ख़रीदारी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका कारोबार बुरी तरह से। उनका यही कहना है कि गवर्नमेंट को चाहिए महंगाई को कंट्रोल करे ताकि उनके भी चूल्हे जो है ना वो जल सकें। जी